So what does this nominal pi method say? That my nominal pi method actually says that my capacitor is actually distributed at my sending end and half of it is distributed at my receiving end. And this particular formation is said to be my nominal pi method. Can you see that this is my Vs? ये है मेरा कुछ capacitor connected. R and L, the system is distributed. The system is actually lumped at my sending and my receiving end. ठीक है? And this is my receiving end capacitor. Okay, so what I can say, let the other assumptions be: R is equals to load current per phase, IR is equals to load current per phase, R is equals to the resistance per phase, XL that is the inductive reactance, C that is capacitance per phase, cos phi R receiving end power factor that is lagging, and this is VS sending end power factor, sending end voltage per phase. Okay, अभी हमें करना क्या है? I'll simply take this particular part on another page. ठीक है, so ये है मेरा simple nominal pi method. Now let us write few equations. तो can you see that my is का यहाँ पे क्या configuration हो रहा है? तो is क्या हो रहा है? जैसे मेरा sending end it is halfway getting, वो जो एक लीकेज मतलब शंट पार्ट में कुछ लीक हो रहा है एंड वन इज ट्रैवलिंग थ्रू माय ट्रांसमिशन लाइन. तो आई कैन से फर्स्ट इक्वेशन is is equals to ic plus il. ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन के से जो भी करंट पास हो रहा है वहां पे गोइंग थ्रू माय रिसीविंग एंड शंट, receiving end capacitance, and the other part is going through my load. So I can simply say IL is equals to IC2, IC2 है यहाँ पे IC1 plus IR. So this is my equation number 2. Can we simply write a KVL for this particular loop? ये particular loop के लिए अगर मुझे KVL लिखना है, what I can say, it is equal to minus VS plus ILR plus ILXL plus VR equals to 0. Please join the class on time. I can. ठीक है, so this is my simple KVL through my circuit. What I need to find my VS. So let us see what is my VS. So simple VS का equation आएगा, VS is equals to VR plus ILR plus IL into XL. So this is my equation number 3. Fine, ये equation number 3 हो गया. Now let us draw the phasor diagram. अभी ये phasor diagram it is bit tricky. Let us draw. Assuming that my load is a lagging load, ठीक है, lagging load है. Let us assume VR as my reference. तो VR को मैंने reference assume कर लिया. So this is my VR. OA is my VR, that is my reference phasor. Load lagging hai, so naturally whatever the current is, that is lagging by an angle of phi r. So this is phi r. At an angle of phi r, I have drawn my IR. Now for this particular equation, in order to plot this VS, मुझे चाहिए क्या? मुझे ILR चाहिए and ILXL चाहिए. ठीक है, तो उसके लिए मुझे कैसे ड्रॉ करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज माय IL. तो ये है मेरा IL इज व्हाट? IC1. अभी IC1 क्या है? करंट अक्रॉस टू द कैपेसिटर व्हिच इज कनेक्टेड एट थ्रू माय रिसीविंग एंड. ठीक है, तो उसके लिए मुझे जरूरत क्या होगी? आई नीड माय IC1. यस, हेलो, ओके. सो लेट अस ड्रॉ दिस IC1. IC1 कैसे ड्रॉ करेंगे? फाइन, ये जो मेरा कैपेसिटर है, तो ये कैपेसिटर से करंट क्या फ्लो रहा है? IC1. नाउ कैन यू से कि ये जो VR होगा दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली, इसका जो वोल्टेज होगा इस पर्टिकुलर कैपेसिटर से जो भी वोल्टेज होगा दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू VR. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ फेजर दैट इज IC1. सो इसी फेजर को, यही फेजर को इफ आई एम
drawing perpendicular और join कर रही हूँ with respect to my IR, I am getting my IL. तो ये है मेरा IC1, this is my IR, और उसका जो भी रिजल्टन आ रहा है that रिजल्टन is nothing but my IL. ठीक है, so this is my IL. Fine. Now what I need, in order to plot VS, I need ILR, IXL. तो यही फेजर IL फेजर को I'll draw perpendicular, I'll draw in parallel. तो VR से यहाँ पे कुछ जाएगा, that is my ILR, और उसके 90 डिग्री JXL है, I can say that this is JXL. तो इसके 90 डिग्री I am plotting my IXL, और इन तीनों का फेजर हमारा है that is equal to VS. ठीक है, ये है मेरा VS. Fine. Now I need to see कि what my resultant current is. Sending end current is. Sending end current क्या होगा? तो sending end current is what? IC2 plus IL. मतलब मेरे पास यहाँ पे IL तो है, मतलब ट्रांसमिशन लाइन का करंट तो है मेरे पास, बट आई नीड IC2. तो IC2 कौन से कैपेसिटर का करंट है? तो IC2 इज द करंट दैट इज फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटर एट माय सेंडिंग एंड. तो आई कैन से इसके यहाँ का जो भी पोटेंशियल होगा दैट इज नियरली इक्वल टू VS. चलो ठीक है, आई हैव ड्रॉन माय VS. फाइन, मेरा VS तो मुझे एज एन फेजर एडिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर 3. VR, IRR and ILXL, इसके फेजर सम से मुझे VS तो मिल गया. इन ऑर्डर टू प्लॉट माई IS, I'll see कि ये जो कैपेसिटर है एट माई सेंडिंग एंड उसका वोल्टेज है कुछ VS. तो इसी VS से आई एम प्लॉटिंग, ये जो मेरा VS है, इसी VS से आई एम प्लॉटिंग एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री अ वेक्टर दैट इज IC2. ठीक है, क्यों मैंने 90 डिग्री? तो ये VS जो भी होगा दैट इज एक्चुअली द वोल्टेज अक्रॉस माय रिसीविंग सेंडिंग एंड कैपेसिटर, तो उसके 90 डिग्री आई एम प्लॉटिंग IC2. नाउ इसी IC2 को सेम प्लेन में लेके आओ यहाँ से एंड जॉइन इट विथ IL. अगर IL के साथ आप जॉइन कर रहे हो तो यू आर गेटिंग और फेजर दैट इज योर IS. ठीक है, ये IS मिल गया आपको. दिस इज IC2, ये IC2 को मैंने ऐसे ही प्लॉट किया and this is my IL. So these are the phases that has to be drawn. ठीक है, and this is the phasor diagram of my nominal pi method. Now can you say that the system is reciprocal or symmetrical? आप बोल सकते हो. तो in order to find out whether my system is reciprocal and symmetrical, let us find out ABCD parameters. तो ABCD parameters draw करने के लिए what will simply do, जो first class में हमने T method कुछ लिया था, तो let us find out. तो हम पहले sections में कुछ divide कर रहे हैं. तो ये मेरा first section हो गया, this is my second section, ये R ये part, and this is my third section. तो let us draw. तो first section में हमारे पास है क्या? I'm simply having and फर्स्ट सेक्शन में इम्पिडेंस Z जो भी होगा दैट विल बी 0. ठीक है, ये है मेरा कुछ C/2, तो आई एम हैविंग माय Y कंपोनेंट. ठीक है, सेकेंड पार्ट में क्या है? तो सेकेंड पार्ट में आई एम हैविंग माय इम्पिडेंस. ठीक है, तो ये कुछ सिस्टम बन रहा है. आई कैन से दैट माय Z इज इनफाइनाइट, Y मेरा वैल्यू 0 है. द थर्ड पार्ट इज सेम. दिस इज C/2, Z मेरा 0 है एंड दिस इज माय Y. ठीक है, सो इनिशियल में हमने क्या देखा था कि Y ABCD पैरामीटर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? ABCD पैरामीटर्स को लिखने के लिए वी हैड एक इक्वेशन हमने लिखा था 1 + YZ, ये Z, ये Y एंड दिस इज 1. कुछ ऐसे हमने ये YZ पैरामीटर्स लिखे थे. तो लेट अस इसी के बेसिस पे लेट अस राइट इसका ABCD पैरामीटर क्या होगा, ये पर्टिकुलर सेक्शन का ABCD पैरामीटर क्या होगा, और ये थर्ड सेक्शन का ABCD पैरामीटर क्या होगा. दिस इज माय फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन एंड थर्ड सेक्शन. ठीक है, तो लेट अस राइट
तो ये पर्टिकुलर सेक्शन में क्या है मेरे पास, तो ये फर्स्ट सेक्शन जो है, तो फर्स्ट सेक्शन का इम्पिडेंस मेरा 0 आ रहा है, सेकेंड सेक्शन का इम्पिडेंस इनफाइनाइट है, एंड थर्ड सेक्शन का इम्पिडेंस 0 है। यहाँ पे y का कुछ वैल्यू है मेरे पास, बट वी वोंट बॉदर कि भाई y का वैल्यू क्या है, विल ओनली सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल्स टू दिस c/2 इन टर्म्स ऑफ y। तो लेट अस राइट कि इन फर्स्ट सेक्शन के ABCD पैरामीटर क्या है। ठीक है, सो दिस यहाँ पे फर्स्ट सेक्शन में क्या है, तो z इज इक्वल्स टू 0, तो 1 प्लस वाई जेड, तो ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाएगा। चलो, तो इट विल ओनली रिप्रेजेंट 1। z क्या है, तो फर्स्ट सेक्शन में मेरा z 0 है, तो ओके चलो भाई 0। y, तो आई एम हैविंग y, हाँ y पैरामीटर है y, एंड दिस इज 1। ओके, नाउ सेकेंड सेक्शन में मेरे पास क्या है, तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज माय सेकेंड सेक्शन। फॉर सेकेंड सेक्शन ABCD पैरामीटर क्या जाएगा, y इनफाइनाइट है, इट इज मल्टीप्लाइड बाय y, मतलब y इनफाइनाइट और z इनफाइनाइट है, y इज इक्वल्स टू 0, so it is 0, तो ओके इट इज 1। z parameter, okay I'm having some z parameter, y is equals to 0, so c y is equals, and this is 1. Can anyone please tell me what will be the value of third section, mein what will be the ABCD parameter? Simple, it is same for first and third, so I am getting 1 0 y 1. Can you people do the multiplication of this particular part? Can anyone please tell me what is the multiplication? कि मैं एक बता दूं, चलो फाइन, लेट्स गेट स्टार्टेड। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। दिस इज व्हाट माय 2x2 मैट्रिक्स। आई सिंपली राइट दी सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन लिख रही हूँ, यू पीपल जैसे ही लेक्चर खत्म होता है फाइंड आउट कि हाउ दिस सोल्यूशन केम अप। तो योर सोल्यूशन दैट इज कमिंग अप इज 1 प्लस वाई जेड, ठीक है, सेकेंड टर्म इज y, दिस इज y into 1 plus, sorry just a second, ये सोल्यूशन आपको कहीं पे नहीं मिलने वाला है, सो मेक श्योर वंस द क्लास इज ओवर 1 y is y plus 1 plus yz into y, एंड मेरा फोर्थ टर्म है 1 plus zy, ठीक है, दिस इज माय अनदर 2x2 मैट्रिक्स। सो ये है मेरे ABCD पैरामीटर, ठीक है। नाउ कैन यू सी कि ये जो मेरा A का वैल्यू है, B एंड C एंड दिस इज माय D, कैन यू सी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स दैट माय A is equals to D? That means what? This system, this particular network, nominal pi method, is my symmetrical network. ठीक है ना, ये सिस्टम सिमेट्रिकल तो हो गया, ठीक है, सिमेट्रिकल तो हो गया। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट कि मेरा नेटवर्क रेसिप्रोकल है कि नहीं, तो मैंने लास्ट क्लास आपको बता दिया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माय रेसिप्रोकल सिस्टम एंड माय सिमेट्रिकल पार्ट, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, AD माइनस BC का वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड इफ दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, AD minus BC का value if it is 1, then you can say that my system is my reciprocal, ठीक है। चलो ये पार्ट आपके लिए कुछ हम
लाइक घर सोल्यूशन आपको कुछ करना है एंड यू नीड टू फाइंड आउट कि AD माइनस BC का वैल्यू मेरा 1 आ रहा है कि नहीं. ओके, अभी तक हमने यहाँ पे जो ये नॉमिनल पाई मेथड, नॉमिनल पी मेथड, इनकंडेंसर मेथड और रिसोर्स कंडेंसर मेथड जो हमने देखा, a question could arise, why are we using this particular method? Basically, when you talk about transmission line, the nominal P and nominal pi method are more preferred and more used. तो ये क्यों यूज किया जाता है? तो ये जो नॉमिनल P मेथड जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, दिस पर्टिकुलर मेथड इज यूज्ड टू एक्चुअली इंप्रूव योर पावर फैक्टर ऑफ योर ट्रांसमिशन लाइन. तो मैं यहाँ पे एक सिंपल स्टेटमेंट लिख सकती हूँ, यूज्ड फॉर improvement of power factor, or I'll write it in power factor of transmission. What about my nominal pi method? So basically this nominal pi method is used to improve the power factor of both the source and my load size. Basically नेचुरल में ये जो मेरा कंडेंसर पार्ट लगा हुआ है, पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की बात जब करते थे हम लोग, तो नेचुरल है we use some condenser method. So this is used for improvement of power factor of source and load. ठीक है, so these are my two uses of why we actually use this nominal pi and nominal p method. Okay, I hope things are clear up to here. Any questions, do let me know.